All right, so good evening and welcome. I welcome you all to the Spirituality and Healing group. And today we are discussing the Ashtang Yoga and we are going to talk on Dhyana, right? So let's have some people share from their journey, what is happening in their life, what are the kind of benefits you are getting, and how we can make that journey, move forward in a faster pace. So yes, who would like to share? Tony, you wanted to share something? Go ahead. Yeah, I just want to have one clarification that is it absolutely utmost important to be practicing yoga in the morning, or can we do it in the evening also? See, the best time we say is in the morning because that time you are on an empty stomach. So you have just gotten up. So you can do, after going for the getting freshen up and all that, you can take 1 or 2 glasses of water as per your capacity, and then you can start. Because your empty stomach, you can do asanas and pranayam very well. But in case you cannot do it, that is not an excuse for you not to do it. You can do that in the evening when again you have a 2-3 hours gap after the lunch. Yeah. तो शाम को भी कर सकते हो आप, जब आपका खाने के बाद 2-3 घंटे का मार्जिन हो जाएगा, you can do that. So that will be good enough. ठीक है. Right? But best time is in the morning, sunrise के आसपास. Yeah, totally got it. But at times what happens is that if I miss out in the morning, I make it a point to do it in the evening. Then you can do that in the evening because that is a good time. Okay. But this I am talking only for the asanas and the pranayam. If you are just doing meditation you can do anytime, whenever you get time. Yeah. That तो I do. Meditation के लिए खाली पेट होना जरूरी नहीं है, तो उसमें आप कर सकते हो. बिल्कुल ठीक. वो कभी भी कर सकते हो. In fact, it is suggested that you do meditation just before going to sleep. That will give you a very sound sleep. Put your subconscious mind and conscious mind to rest. उसके बाद जब रेस्ट में हो जाएगा माइंड, आराम से आप सो सकते हो. तो नींद बहुत अच्छी होगी. And major healing or cleansing happens when you are asleep. You should know that. Yeah. Especially if you are since you are a healer, so you would know that healing करते हुए अगर आप सो रहे हो तो रात को बहुत अच्छी healing होती है आपकी. Correct. Subconscious mind की healing बहुत अच्छी हो जाएगी. Deep sleep state में बहुत अच्छी healing होती है. So you can get the benefits of that healing very, very effectively. Great. Very good, Tony. Anyone else who would like to share? Amit ji, Parth, and welcome Kiran, welcome Kamini ji and Leslie ji. Kamini ji, I think has joined for the first time. So Amit ji, आपने बुलाया है? नहीं जी. नहीं. तो Kamini ji अपने आप को थोड़ा सा introduce करेंगे so that we know who you are and where you are. Welcome to the session. Kamini ji, are you there? Yes sir. हाँ जी. मैम आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे आपको ग्रुप में. हेलो. हाँ हेलो सर. हाँ जी. मैं कौन से ग्रुप में कोचेस गेट टुगेदर इसमें. It's okay. I just wanted to know where did you come to know about our group and किसी ने इनवाइट किया आपको? नहीं सर, ये जो हमारा एक कोचेस गेट टुगेदर ग्रुप है उसके अंदर आपका आया हुआ था. Okay, great. जो कोचेस ग्रुप में से आप आए हो. All right, great. हाँ, Yeah, I did post there. That is fine. तो कमी जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप और कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक काउंसलर हूँ. नहीं सर, और दिल्ली से हूँ. Okay, very good. So be part of the session. Enjoy the session. In case you have any queries, कोई सवाल हो आपके या कुछ आप शेयर करना चाहें कभी भी, तो you are most welcome. Thank you. Thank you so much. And you can switch on your video and participate. It will be better. We can connect with you, and you will be able to also connect with us better. Yes. Sir. Yes. Welcome. Yes. So who would like to share again? कौन share करना चाहेंगे? Yes, Sanjeev, go ahead. Shashi, I would like to share the same thing almost what Tony shared, and what I have taken a step from one of the learning also you shared. Like Tony, I am also not very regular a lot of time. So earlier what I used to do, मैं कभी late उठता था, so I would do part of my yoga, pranayam, asanas, and then I would be in that mode. But I had that guilt within me कि यार ये part वाला काम में मजा नहीं आ रहा. And then Shashi, once you shared one of the method that unless you put something on stake, okay,
it won't work. So you have to do it. Now what I have done, I promised myself, if I don't wake up on time or I wake up on time, whatever time I wake up, either I do it completely or I don't do it at all. So I've given that punishment to myself, that if I see that I don't have enough time to complete my all the process of asana, pranayam, meditation, so I will not do at all. So that is like my self commitment to me. And you know what has happened with this? The first day when I woke up, थोड़ा सा अजीब लग रहा था, कर लूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं. Second time, I again, when I was late, I gave this commitment to myself. I punished myself by not doing it. And then I got a realization very clearly, what is this happening? And I got to the root cause. Those days when I sleep late in the night, I'm not able to wake up early in the morning. I can wake up, but you know, my body, my mind says, सो जाना, रात में लेट सोया था, थोड़ी देर और सो जा. Now my mind is trying to overpower me for not waking up early in the morning. Now I am telling my mind, if you play, I'll play with you. I don't allow you. Now what I did, मैंने जब 2 बार कर दिया तो माइंड धीरे धीरे क्या उस लेवल पे आने लगा है. इवन आई स्लीप लेट इन द नाइट, मॉर्निंग में जब उठते ना, पहली बार बोलता है कि थोड़ा सो जा, लेट सोया था तू, और थोड़ा सो जा. एंड इमीडिएटली नेक्स्ट टाइम बोलता है, लेकिन तू अभी उठ भी सकता है. And that's the point, you know, I see my achievement. Oh my God, this is possible. So sleeping late is just probably was a drama which was happening in my life related to mind level. And Tony, like today morning, I'm telling you, again, I slept late till I slept till almost 8:30 today. And I knew that I spent almost 3 hours for my morning rituals. Nahi ho sakta. Shashi, thank you for this line which you gave, that what are you putting in stake? And I started doing that. And then my body itself says, now sleep early if you can't wake up early. Don't try to play with it. That's what I'm saying. Thank you very much for this. Absolutely great. Wonderful sharing, Sanjeev. And this is very, very powerful. You see, what he has just shared is, I was sharing one aspect of it, कि guilt में नहीं जाना है, regret में नहीं जाना है. But at the same time, if you want to train your mind how to commit, like I shared in the last sessions, punish yourself. अगर मैंने सुबह का, जब तक मैं सुबह उठ के अपना आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन नहीं करूंगा, मॉर्निंग टी इज गॉन. देन यू हैव नाउ टाइम. मॉर्निंग टी इज गॉन, डेफिनेटली गॉन. वो तो गया. अब बचा सकते हैं ब्रेकफास्ट कर ले और नहा धो के आ जाए, ब्रेकफास्ट कर ले, वरना ब्रेकफास्ट भी जाएगा. सो यू हैव टू पुट समथिंग एट स्टेक. चाय तो गई. Morning tea, you are not entitled for morning tea now, because you didn't get up and do the required things. So punish yourself, mind will fall into line very fast. But having said that, don't get into a regret mode. Regret या guilt में नहीं जाना है, पर mind को train करने के लिए थोड़ी सी punishment दे सकते हो, and that works. It works very well because it has worked for me. I have done that. पर ये उस समय होता है जब mind के initial trainings आप body को और mind को train कर रहे हैं. एक बार train हो गया, then as I say, you can have some cheat days, you can give some liberty. तब कर सकते हो. लेकिन जब तक ट्रेन नहीं हुआ, यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस विद योर माइंड कि नहीं किया, अब ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, भूखे रहे ना, तेरे को सोना था ना, सो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, अब लंच करना. नहीं चाहिए तो कल जल्दी उठ के कर. जैसे बच्चे को समझाते हैं, अगर समझाओगे माइंड समझ जाएगा. 2 बार नहीं खाएगा ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग टी छूट जाएगा तो अपने आप सही लाइन पे आ जाएगा. राइट, सो दैट इज वन. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. यस, एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? वेलकम लेस्ली and Amit ji and Parth, something you want to share? कहाँ पे हो, क्या खुल के आ रहा है, कोई नई चीज दिमाग में आ रही है, कैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओगे? ब्लॉक है, देखिए ब्लॉक आ गया है, रोड मतलब रोड ब्लॉक है या स्पीड ब्रेकर है, तो स्पीड कम करनी पड़ेगी, लेकिन आगे कैसे बढ़ोगे इसका प्लान करना पड़ेगा ना साथ में. नहीं उठ पा रहे हो सुबह, जब उठो तब करो, तो थोड़ी सी पनिशमेंट दे दो अपने आप को, चल जाएगा काम. राइट. सो अमित जी, कहाँ तक पहुंचे आप? आपकी जर्नी कहाँ तक पहुंची? मैं सोच रहा था कि बताता हूँ कि वो ये मेरे साथ ना कि जो फिजिकल आसना, जो योगा इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू आसन या प्राणायाम या फिर ब्रेथ वर्क, वो मेरे को आई थिंक वो एक डंडा चाहिए जिसमें मैं एक फिजिकल जो एट्रीब्यूट्स है योगा के, नॉट जस्ट द थॉट प्रोसेस, नॉट जस्ट द सात्विक लाइफस्टाइल, वो बाकी सब कर पा रहा हूँ, पर ये जो पोस्चर बेस्ड चीज़ें और जो ये ब्रेथ वर्क बेस्ड चीज़ें उनको मैं जुडिशली नहीं कर पा रहा हूँ.
लेकिन धारणा ध्यान समाधि में डेफिनेटली जैसे कि हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ धारणा के साथ ध्यान होता है। समाधि स्टेट पे नहीं पहुंच पाता शायद, मुझे लगता है, पर कभी 1-to-1 डिस्कस और करूंगा आपसे तो समझ में आएगा कि वो समाधि थी कि नहीं थी। डायरेक्ट डाउनलोड्स एपिफेनीज तो हो रही है हर हफ्ते में, बट पर वो रास्ता शायद अलग है। मैं वो फिजिकल पोस्चर में कहीं जा ही नहीं पाया। बचपन में कोशिश की थी, तो वही मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। बट अल्टीमेटली बहुत जो भी है लाइफ में, वो एक्सेप्टेंस के बाद मुझे मेरा पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, उससे अनकंडीशनल लव, उससे ब्लिस और उसके बाद सच्चिदानंद। तो ये लाइफ के कई पहलू में एक्सपीरियंस होता है, बट ये चीज़ नहीं कर पाता मैं फिजिकल पोस्चर्स वाले। So that's good, अमित जी, आपने जो शेयर किया। इनफैक्ट आपसे 1-to-1 काफी बात होती रहती है। सो आई नो योर जर्नी, राइट? तो जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थिंग्स आर हैपनिंग, ओनली थिंग इज इट इज नॉट हैपनिंग इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर। So what Ashtang Yoga will give you, it will start happening in a structured manner. That is only one thing जो मैंने पहले भी बताया था, आपको दोबारा बता रहा हूँ। आपके एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहे हैं। तो आप यम का एक पॉइंट पकड़िए, उसको देखिए लाइफ में है कि नहीं। अवेयरनेस चाहिए, मैं कुछ करने को नहीं बोल रहा। सत्य और अहिंसा कितना है लाइफ में आपके, आपको आप मेरे को मालूम है वो ऑलरेडी। तो आपको सिर्फ अवेयर होना है कि यम तो मेरा ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। परफेक्ट हो ना हो, प्रैक्टिस में है। नियम वो भी प्रैक्टिस में है, मैं जानता हूँ, ठीक है। कई जगह डिसऑर्डरली होंगे, बट काफी जगह पे आपका यम और नियम लाइन में है, राइट? एंड दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग, दैट इज व्हाई यू आर रीचिंग दैट लेवल ऑफ धारणा ध्यान, वरना पहुंचोगे ही नहीं सर। देयर इज नो वे यू कैन रीच देयर। Ashtang Yoga is a science. It's a science of consciousness. Let me tell you that. Vedanta is a science of consciousness. Ashtang Yoga is given by the enlightened mind as a revelation. ये कोई सोच के एनालिटिकल माइंड ने नहीं निकाला है, ये एक्सपीरियंसेस हैं सेजेस के, जिनकी वजह से ये बना है। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है सेल्फ एनलाइटनमेंट की तरफ जाने का। देयर इज नो शॉर्टकट। यू आर डूइंग दैट, ओनली थिंग इज यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ इट। इसलिए आप सिर्फ धारणा और ध्यान को पकड़ के बैठे हैं, ठीक है। अब आसन और प्राणायाम अगर नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। लेट मी पुट इट दिस वे। सपोज I didn't want to suppose. I wanted people to share so that I can tell you what exactly is happening. So let me give you an example, kind of a explanation, so people will connect with it. Okay. अब कई लोग बोलते हैं मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ और उस समय माइंड मेरा भाग रहा है पास्ट में और फ्यूचर में। किसी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा है, किसी ने मेरे साथ पास्ट में बहुत बुरा किया, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है और मेरे को वो सारे थॉट्स उस समय आ जाते हैं जब मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, टेल मी। ये केस स्टडी है, so let me discuss that as a case study. That makes sense. Now you can connect with it or you may not connect with it, that is fine, but do that as a case study. एक बंदा मेडिटेशन में बैठना चाह रहा है, साधक है, मेडिटेशन में बैठना चाह रहा है, लेकिन उस समय उसको सारी चीजें पास्ट के आ जाती हैं और फिर उसको लगता है कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा क्योंकि फ्यूचर में भी कहीं ये ना हो जाए। So his mind is fluctuating into the past failures and deceit and shocks or whatever you can say, जो धोखा उसको मिला पास्ट का, और वो उसमें अटक जाता है, सारी यादें आ जाती हैं और वो फ्यूचर के एक्शन प्लान में बिजी हो जाता है कि कैसे उसको अवॉइड करूं। नाउ दिस इज द सिचुएशन, ही कांट मेडिटेट। व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? टेल मी फर्स्ट, प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है? आई थिंक मोर इफेक्टिव मेडिटेशन ब्रेथ पे फोकस किया जाए उन सेकंड्स तक। मतलब अगर आप टेक्निकल बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक आंसर पूछ रहे हैं तो मतलब फोकसिंग ऑन ब्रेथ, वही नॉस्ट्रिल्स पे हवा और जितना लंबा खींच सके धीरे धीरे 1-4-2। Correct. Okay, fine. So you have arrived at the solution, right? सॉल्यूशन पे पहुंच गए हम, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है आपको समझ में आ गया कि वो प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट और फ्यूचर में जा रहा है, प्रेजेंट में नहीं है, ये है प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? प्राणायाम। करेक्ट, ब्रेथ में आ जाए मतलब प्राणायाम, यानी कि एक स्टेप पीछे गए, ध्यान नहीं हो रहा है, तो यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, ही इज मूविंग इनटू पास्ट एंड प्रेजेंट। मन स्थिर नहीं है, मन स्थिर अगर नहीं है तो यू हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर ओन। आपका राजयोग जो बोलते हैं हम, उस योग को पकड़ना है सबसे पहले। उस योग में सबसे पहले आपको यू हैव टू फर्स्ट गो टू द लेवल ऑफ प्राणायाम सो दैट यू कैन बिकम स्टिल। राइट, क्लियर है? ये क्लैरिटी आ रही है? तो जितने लोगों को डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं और माइंड अलाउ नहीं कर रहा है मेडिटेशन के लिए, यू हैव टू फर्स्ट स्टिल योर माइंड बाय डूइंग प्राणायाम। अनलेस यू डू प्राणायाम प्रैक्टिस प्रॉपरली, और करेक्ट 10 मिनट प्राणायाम करो, फर्क नहीं पड़ रहा तो 20 मिनट करो। माइंड स्थिर नहीं हो रहा है तुम्हारा, जब तक स्थिर नहीं होगा यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। So everybody getting a sense of it?
you have to go one step back. अब अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपको बहुत जबरदस्त डिजायर आ रही है, मेरी प्रमोशन चाहिए, मेरे को प्रमोशन चाहिए, जब तक प्रमोशन नहीं होगी मैं चैन से नहीं जी सकता, और मेरे EMIs कैसे होंगे, मेरे को घर खरीदना है, मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी झंड हो गई, ऑल दीज थॉट्स आर कमिंग. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ दिस इज द केस स्टडी? क्या लग रहा है? The person is in the future. या बट व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम? फ्यूचर में जा रहा है, उसको क्या करना है फ्यूचर में? वरी है, एंजाइटी है, या क्या है, या फुलफिलमेंट चाहिए? I think if there is anxiousness, anxiety ज्यादा है. बट अगर वो बोल रहा है कि मेरे को प्रमोशन चाहिए, दैट मींस ही इज बेसिकली लुकिंग एट द डिजायर, राइट? एंजाइटी वरी है, बट फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इज व्हाट हियर ही इज लुकिंग एट हियर. तो यहाँ पे उसकी धारणा ज्यादा जरूरी है. He has to first fulfill his desire and then come to the meditation part. क्योंकि मेडिटेशन में बैठ रहा है तो उसकी डिजायर ऊपर उठ रही है. Get my point? उसको प्रमोशन चाहिए, क्यों? पैसा ज्यादा चाहिए, क्यों? क्योंकि उसकी नीड पूरी नहीं हो रही है, उसको कंफर्ट चाहिए. So he is in fully focused on the fulfillment of the desires. Desires पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए माइंड अशांत है. Getting a sense of it? So it could be both ways. Either he could be moving into past and present, or he could be just concentrated on one particular desire. Somebody who says, I will only be happy after I get married. And such a person doesn't know that after marriage, that is the last thing he will get, right? But anyway, the thing is that if he's focused on that, then that is the desire he has to fulfill first. Before dharana, he can't sit in meditation. ध्यान में नहीं जा पाएगा वो, क्योंकि ध्यान में जाते ही उसके desires उठ रही हैं. So you have to understand, this is a problem which has to be handled at the level of dharana, right? तो अगर इस लेवल पे आप जाते हुए आगे बढ़ेंगे, तब आप जब ध्यान पे पहुंचेंगे, it will be an easy thing for you to manage because you have already taken care and mastered the steps towards it. Making sense? Correct? अब आप अगर मेडिटेशन में बैठ रहे हो और आपके पाँव घुटने में दर्द हो रहा है, आपके अंगूठे में दर्द हो रहा है, आपके कमर में दर्द हो रहा है, अब क्या हो रहा है? आप कह रहे हो मैं कर तो लूं प्राणायाम, लेकिन मेरे को आंख खोल के बैठना पड़ रहा है, मेरे को खुजली करनी पड़ रही है बीच में, ये सब प्रॉब्लम हो रही है. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? दिस इज सिंपल, राइट? ये तो फिजिकल प्रॉब्लम है, तो आपको मालूम है क्या करना है. आपको आसन की प्रैक्टिस करनी है. यू आर नॉट प्रैक्टिस योर बॉडी टू बी स्टिल. बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको आसन करना जरूरी है. इफ यू कांट सिट प्रॉपर्ली, अगर आप क्रॉस लेगेड नहीं बैठ सकते हो, पद्मासन छोड़ दो, क्रॉस लेगेड भी अगर आप ढंग से नहीं बैठ सकते हो, 15 मिनट आप बॉडी को रोक के नहीं बैठ सकते हो बिना खुजली किए, दैट मीन्स योर माइंड इज रेस्टलेस एंड योर बॉडी इज इन प्रॉब्लम. तो आपको आसन की प्रैक्टिस करनी है. गेट माय पॉइंट? और अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उस समय बहुत ज्यादा इमोशनल टर्बुलेंस हो रही है, देन यू शुड नो यू हैव टू डू द प्राणायाम एंड गेट रिड ऑफ योर इमोशंस अंडर कंट्रोल. So you will see the whole thing is going step by step. कितने लोगों को दिख रहा है ये? Right? तो first the basic foundation, यम और नियम. आप देखो, सिर्फ अवेयर हो जाओ कितनी चीजें आपकी लाइफ में हैं, कितनी चीजें आपकी लाइफ में नहीं है. Then systematically move on to the next step, which is asana. Then pranayam. This is how the stepwise we go, right? So let's have some more people share, and then we will look into it. कि क्या इसमें सॉल्यूशन है और किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है और क्या सॉल्यूशन है, we will see, and then we will look at ध्यान. Because see, as I was telling you, हम ध्यान पे हम जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं. आज इनिशियली आई हैड थॉट कि मैं 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए मेडिटेशन प्लान करेंगे, बट आई थिंक वी विल कीप दैट फॉर द नेक्स्ट सेशन वंस वी आर अवेयर कि हमारे रोड ब्लॉक्स क्या हैं. क्योंकि अगर मैं 10 मिनट मेडिटेशन करा भी दूंगा तो आप ऑनलाइन हो, आप क्या करोगे मेरे को नहीं मालूम है, राइट? तो बेटर है कि आप खुद एनालाइज करें कि आपके रोड ब्लॉक्स क्या हैं. तो लेट अस फर्स्ट लुक एट अवर जर्नी. क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? वी विल डिस्कस दैट. ऑल ऑफ यू डू द प्रैक्टिस एट होम फॉर 1 week. नेक्स्ट वीक we will discuss what are the exact problems and we will actually do a meditation for 15 minutes or so in this session. Is that okay with everybody? Yeah, making sense? Good. But I want a commitment from all of you, because I am devoting another session for ध्यान, just because you have to be committed कि at least 15 मिनट तक का एक टाइम. 15 मिनट is okay for everybody? बहुत ज्यादा तो नहीं है, कम है वैसे तो, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं है. मैं ये पूछ रहा हूँ, किसी को बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, लेकिन 15 मिनट बिना हिले डुले बैठ सकते हो.
सांस नहीं रोकनी है, सांस नॉर्मल लेनी है. पता लगा कोलैप्स हो गए, सांस रोक के बैठ गए. So you have to understand, meditation is simple breathing in, breathing out. You can take any kind of method. One small method I will possibly share with you today, theoretically, so that you can practice it that way. Okay? Right. So let's have some people share so that I know. And welcome Rekha ji. Anybody who wants to share? कोई अपने जर्नी के रोड ब्लॉक्स को शेयर करना चाह रहा है, अपनी अचीवमेंट शेयर करना चाह रहा है, या कोई सिंपल सक्सेस स्टोरी सुनाना चाह रहा है कि मेरी मेडिटेशन तो एकदम मक्खन की तरह हो जाती है जी, 1-1 घंटा बैठ जाओ तो मेडिटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे भी होंगे लोग, राइट? सो इफ यू वांट टू शेयर दैट इज फाइन. लेट्स हैव सम पीपल शेयर. कौन शेयर करना चाहेंगे? किरण जी वेलकम, अगर आपको शेयर करना चाहें. यस, मेडिटेशन तो सभी लोग करते हैं, सबको शौक है, उनको मालूम है. एवरीबॉडी वांट्स टू डू मेडिटेशन बिकॉज़ दिस इज द लास्ट स्टेप एंड एवरीबॉडी वांट्स टू रीच देयर फर्स्ट. योगा मतलब आसन बिछाया और मेडिटेशन करने बैठ गए. हाँ जी, कौन बोलना चाहेंगे? रेखा जी. हाँ यस सर. हाँ जी बोलिए. नहीं, शुरू तो हम लोग आसन से ही करते हैं. सबसे पहले आसन लगा करके फिर थोड़ा थोड़ा करके प्राणायाम करने के बाद ही 15 मिनट के मेडिटेशन का ही वो बना रखा है शेड्यूल. तो 15 मिनट इजीली हो जाता है. इजीली हो जाता है तो फिर उसको आप आधा घंटा करो. हाँ, अभी थोड़ा सा बस आधा घंटा नहीं हो पा रहा, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा होता है कि नहीं अब अनकंफर्ट होने लगा, तो फिर उठ जाते हैं इसमें से. पोजीशन चेंज करके यू कैन स्लोली इंक्रीज इट. डोंट मेक इट 30. 15 से 18 मिनट करके देखिए. ओके. 20 मिनट करके देखिए, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है, राइट? ठीक है. और अलार्म लगा लीजिए. तो अलार्म बजेगा तो आपको मालूम है, जब तक अलार्म बजेगा उसके बाद 1 सेकंड भी नहीं रुकना, उसके बाद उठ जाना है. ओके. वी कैन चैंट एनीथिंग ना सर इन दिस? But better if you keep that as one statement or 1 month, that will be the best part for you. Okay. है ना? क्योंकि उससे क्या होता है, अगर आप एक मंत्र या छोटा सा मंत्र रखेंगे अपने पास तो वो रिपीटिशन में दिक्कत नहीं होगी. हाँ हाँ. कोई भी एक थॉट या एक मंत्र को आप पकड़ सकते हैं. ठीक है. अभी हम जैसे थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. ओम ह्रीम नमः आपने बोला है तो वो ही पकड़ा हुआ है एक मंत्र. वो मैम वो हीलिंग मंत्र है. यू डोंट हैव टू शेयर दैट, बट यस यू कैन. ओके. सॉरी सर. सॉरी. हीलर्स का मंत्र है वो अलग रखिए, ठीक है? बट कर सकते हैं वो सब आप कर सकते हैं. ठीक है सर. थैंक यू. यस, एनीबॉडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? और कौन शेयर करना चाहेंगे? I think Leslie wanted to share something. Who wanted to share? Leslie. हाँ जी Leslie, you are smiling away to glory. हाँ बताओ. I don't know whether it's glory or something else. Yeah. Okay. I just wanted to, before you starting the meditation part, I just wanted to share the kind of meditation that I'm following, and that is the Vipassana that I'm doing, and awareness meditation, just simply sitting and being aware of. So in that, yes, minutes, initially when I started off, it was, I couldn't even sit for 5 minutes also, but now, yes, I can push through half an hour, and I can even go further till many a times I've done 1 hour. And the simple explanation about the meditation that I'm being able to share out here is that all that I do is keep watching my states of mind, which continuously keeps changing. The thoughts keeps coming in, the thoughts keeps going out. And so many a times, the issues, the problems, they grip onto my personality and they make a havoc into my mind. And I keep watching it. And slowly and gradually it unravels and it loses its grip and it leaves. So those are the kind of meditations that I'm doing, and breathing, simple breathing, and being aware of the breathing. That's it. Yes, at this time, rather many a times the issues or problems which come up, they do grip me, and while I'm sitting in the meditation, like you shared, that person was anxious about his job, the person was anxious about the situation of his life. Yes, you do, because your states, you do carry those states. So just becoming aware of those states that you are into that, so that also I consider as meditation only, that you just being aware of those states.
And at this moment, yes, I am going through a roadblock, which you have kind of know, and I'm just taking my time when I'll be opening out to you. That's it. That's perfect, Lassi, and that's wonderful sharing, by the way. Very good. So what you have just shared is, like you have shared the entire range of meditation that can happen, right? Either you can be absolutely in a flow and you can meditate for a 1 hour or so, and that is absolutely great, right? And that is exactly what is required. That is the process of meditation. तो ऐसा नहीं है कि आज अगर हो गया तो कल हो जाएगा, नहीं. आज का मेंटल स्टेट कुछ और है, कल का मेंटल स्टेट कुछ और होगा. आज बिल्कुल शांत है, साइलेंट है, बहुत अच्छी मेडिटेशन हो जाएगी. तो आपको लगेगा यार कल लगेगा यार आज जैसा क्यों नहीं हो रहा है. Forget it. It will not happen. It will happen at its own pace. So what you have to do is be in the flow. आपको उस फ्लो में रहना है. सिर्फ ये देखिए कब जब ब्लॉक आ रहा है तो क्या ब्लॉक आ रहा है. जैसे अगर आपको लग रहा है कि कोई सिचुएशन है, लाइफ सिचुएशन है जिसको जो डिस्टर्ब कर रही है, वापस आ जाओ एक स्टेप. ध्यान नहीं लग रहा है, ब्लॉक है, वापस आ जाओ. पहला स्टेप क्या है, एक स्टेप पीछे आओगे तो धारणा. There is some desire which has to be fulfilled. Now follow that process. Get that, either a desire की fulfillment के लिए एक affirmation करो, leave it to the universe, deal with the universe how it is, make an affirmation, उसको proper तरीके से deal करो, and then let the manifestation process start. Leave it to the divine, the result. Take the appropriate action. Leave the result to the divine. Now having taken care of that, now come for the ध्यान state again. So that's what I said. अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो धारणा पे आ जाओ. अगर कोई डिजायर फुलफिल्ड है, अगर माइंड फ्लक्चुएट कर रहा है तो प्राणायाम में चले जाओ. तो एक स्टेप आपको पीछे जाना ही पड़ेगा. अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो फिर आपको आसन और प्राणायाम पे आना पड़ेगा. करेक्ट. एंड देन फाउंडेशन चाहिए तो फिर यम और नियम को पकड़ना ही पड़ेगा. दैट इज द फाउंडेशन. तो यू जस्ट हैव टू कम बैक. एंड जब माइंड स्टेबल स्टेट हो जाएगा, यू विल अगेन मूव टू द मेडिटेशन स्टेट. तब ध्यान आराम से लग जाएगा. और ध्यान में जाते रहना है. ध्यान 1 घंटा आप लगाओगे तो उसमें समाधि स्टेट बीच में आएगा. व्हेन यू आर touching that samadhi state, maybe of 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, that is fine, that's great. वापस आ जाओगे फिर कोई थॉट आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, वापस आ जाओगे. So being that is a process. Because as you keep touching the samadhi state, you will keep erasing the imprints of your memories. चित्त आपका clear होना शुरू होता रहेगा. And that is the perfect way for meditation. So great, that's wonderful sharing. Yes, who else wants to share? Anybody else? Yes, Parth, go ahead. आप म्यूट पे हो. हाँ, मतलब मेरी लाइफ में भी थोड़ा सा स्लम्प चल रहा था, तो उसकी वजह से थॉट्स वगैरह, इमोशंस काफी इरेटिक, मतलब ऊपर नीचे चलता है. ठीक है. तो मतलब वही मुझे लग रहा था मैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या पकड़ूं ठीक करने के लिए चीजों को. सो आई स्टार्टेड विद अ वेरी सिंपल थिंग. ठीक है. मैंने अपने रूम के अंदर से लाइक जितना भी, एक तो चीजें थी जो तो काम की नहीं थी, कपड़े थे, चीजें थी, वो सारा निकाला, ऑर्गेनाइज किया. ठीक है. एंड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल हैपेंड कि मैंने कहा कि इट इज नॉट जस्ट जो इस्तेमाल में नहीं है उसको निकालना है, जो बाकी सारी चीजें हैं उसको भी ऑर्गेनाइज करके रखना है. तो मैंने उसमें लाइक जो भी मैंने अपने बचपन से संभाल के रखी हुई थी चीजें, तो इट वाज लाइक गोइंग बैक इन टाइम. जो मैंने चीजें रखी हुई हैं कि मैं देखूंगा बाद में. तो व्हेन आई वेंट देयर ना, मेरे को बड़ा पीसफुल लगा. लाइक जैसे आपको मेडिटेशन करते हुए पीस लगता है ना, कुछ वैसा सा ही था. ठीक है. तो वो मेरे को अच्छा भी लगा कि हाँ चलो एक कुछ छोटा स्टेप भी लिया, और साथ में उसके साथ में क्या कहते हैं, तो उसके साथ में जो है देखा मैंने कि क्या क्या चीजें थी इन ऑल दैट. तो लाइक हाँ कितने अच्छे दिन थे जो भी थे. आई वाज लाइक थोड़ा मोटिवेशन भी उससे मिला. तो ये चीज है कि अगर आप अपना फिजिकल स्पेस भी क्लीन करते हो तो भी आपका माइंड क्लीन होता है. तो बहुत बेसिक स्टेप से स्टार्ट करो. The right word for that is decluttering your mind. When you declutter the space around you, you declutter your mind, and that's wonderful, Parth. That's wonderful, great, good job. And that is the beginning, I would say. जब तक space clear नहीं होगा, तब तक action सही नहीं होगा. So you have to clear the mind space also, which is very good. Mind का space clear होगा तभी mind शांति से बैठेगा. And that gave you a lot of peace and happiness. So I'm happy to hear that. Now having done that, now organize. Mind जरा settle down हो जाएगा, thoughts organize हो जाएंगे. अब आप शुरू करो. ठीक है ना. तो आसन, प्राणायाम, meditation शुरू करो. And then of course foundation तो आपको मालूम ही है, आप सारे सेशन अटेंड कर चुके हो. तो यम नियम को थोड़ा सा आपने रिव्यू करते हुए जाना. ठीक है ना. And then we will see how we can
move ahead. Great. Very good. Who else wants to share? On Reggae? Anybody else who wants to share? Okay, good. So most of the people have shared. Anything for, let me just check. Parmeet ji has joined. परमीत जी आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? अमित जी आपने इनवाइट किए? हाँ जी, तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लीजिए। हाय, हेलो एवरीवन। नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट मीटिंग है, तो मैं थोड़ी लेट भी हो गई थी। आई वाज बिजी इन माय वर्क। मेडिटेटिव स्टेट, अगर हम मेडिटेशन की बात करें तो कहने में इजी लगता है, बट इट्स एक्चुअली नॉट दैट इजी प्रोसेस, बिकॉज माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना इज द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज यू नो in our everyday life we have a lot of thoughts coming in our mind, right? Mind हमेशा चलता रहता है हमारा, तो इसके लिए I think सबसे important होता है कि कोई एक aspect choose करना जिससे आप focus कर सकते हो. You know, it could be anything. It could be any white light. It could be any particular thing. You know, for example, I listen to music या मैं कीर्तन सुनती हूँ, उससे मेरे को meditation होती है, right? You know, I go in that state when I listen to Gurbani. So probably I think we need to have that focus, which is not that easy, but I try to do that. मैं थोड़ी बहुत meditation करती हूँ, and I also get in a meditative mode when I listen to, as I said, Gurbani. So that is what I have been doing. Great, wonderful, Parmeet ji. So that's really nice. And Thank you. Coming here for the first time, so participate and enjoy the session. And if you have any queries, you can ask, or if you can just want to share something, you're welcome. Right? Sure. It is a pleasure. Thank you so much. Thank you. And one thing that Parmeet ji has shared is very, very nice. There is something that you need to focus on so that your mind is not distracted all over the place. It doesn't go all over the place. तो इसीलिए हम अक्सर बोलते हैं कि जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मेडिटेशन के लिए अगर बैठने में तो कुछ चीजें क्या ध्यान में रख सकते हैं, राइट? So of course this process will continue, but there is a very, very important mantra also, or rather a shloka also, which is mentioned in Bhagavad Gita, right? So even that says, you know, what exactly is required when you are sitting in meditation, right? तो उसमें सबसे पहले है आपको एक पोस्चर में सही बैठना है, ठीक है? यानी कि आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए? Your back, neck and head should be in a straight line, comfortably straight line. तो it's not like strict attention, लेकिन हाँ more or less straight line में होना चाहिए. तो आपका back, neck और head, so this has to be in a straight line, ठीक है? तो इसको जो उसके बाद you have to sit in a posture. अगर आप आसन में बैठे हैं तो सुखासन में क्रॉस लेगे, और पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में आप बैठ सकते हैं. और जिनको आसन में बैठने की प्रॉब्लम है, यानी कि योगा मैट वगैरह बिछा के बैठने में प्रॉब्लम है, in that case you can do this on a chair also. But then what you have to understand is, when you are sitting on the chair, first of all, you should be motionless. Again, back, neck and head should be straight, and your hands should be resting very gently on your thighs or your knees. तो इस तरीके से आप आराम से बैठेंगे, palms facing the sky, and when your heels are touching, आपके पाँव के जो heels हैं वो heels touch करेंगे और feet थोड़ा सा apart रहेगा. तो इस तरीके से एक पोस्चर में आप कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है? Now, initially वैसे अगर आप बिल्कुल भी मेडिटेशन अपने आप नहीं कर पा रहे हैं, then guided meditations can help you. तो guided meditation के बहुत हैं YouTube में, आप कोई भी ढूंढ लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है? तो I often suggest कि ओम मंत्र का guided meditation आप कोई भी लगा के आराम से आप बोल सकते हैं और साथ साथ में जब भी कर सकते हैं. So what happens is when you are focusing on one particular mantra, say ओम मंत्र, then mind will not get distracted into anything else. क्योंकि एक थॉट आपने दिया हुआ है, mind at a time can think only one thought. एक टाइम पे माइंड सिर्फ एक ही थॉट सोच सकता है, वो सक्सेशन में और थॉट्स आते जाते हैं कंटिन्यूएशन में, लेकिन एक सेकंड में एक ही थॉट आएगा, वो थॉट खत्म होगा तो उससे फिर उससे रिलेटेड थॉट्स शुरू हो जाते हैं. तो अगर आप लगातार एक मंत्र का जप करते रहेंगे तो माइंड कंसंट्रेटेड फील करता है और माइंड वहीं पे रहेगा, शांत रहेगा. तो दिस इज द वे दैट यू कैन एक्चुअली डू द मेडिटेशन पार्ट. तो इनिशियली क्या करना है? पोस्चर क्लियर हो गया सबको. आइदर यू कैन बी इन ए आसन on a yoga mat, or you can be sitting on a chair also. Preferably आप ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करें, that is a right way, but make sure that it is a proper ventilation के साथ है. तो fan can be on, the window should be on, open, so that there is a proper cross ventilation, ठीक है?
तो यहाँ तक क्लियर है? Sorry, what did you say that you should be facing which direction? Either east और north बोलते हैं. Okay, okay. क्योंकि मॉर्निंग में अगर कर रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट इज गुड बिकॉज सनराइजिंग होगा. ठीक है, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट इज सपोज टू बी अ गुड डायरेक्शन फॉर मेडिटेशन व्हेन यू आर फेसिंग. तो आप उस तरफ फेस करके अपना मेडिटेशन या जो भी आप करना चाहो कर सकते हो. दैट इज द राइट वे. नॉट देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, बट इट इज अ बेटर वे. यू कैन से माइंड जल्दी से शांत हो जाएगा आपका. ठीक है, अब आसन में बैठ गए आप. अब उसके बाद क्या करना है? सो यू आर फर्स्ट सेइंग दैट योर बैक नेक एंड हेड इज इन स्ट्रेट लाइन एंड द श्लोका गोज समथिंग लाइक दिस. समम काये शिरो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिर संप्रेक्षय नासिका ग्रंथम दिशश चांट वलोक्यम. So this is the actual shloka which is there in the Bhagavad Gita, which basically says once you are taken this posture of back, neck and head straight, then you have to sit in a motionless position. स्थिर सुखम आसनम जैसे बोलते हैं हम. तो स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट के साथ आपको एक स्टेबल पोज में बैठना है, फिर हिलना नहीं है. वट एवर टाइम यू स्पेसिफाई, मे बी 10 मिनट्स 15 मिनट्स. मैंने 15 मिनट्स बोला. 15 मिनट्स के लिए आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं कि अब इस 15 मिनट में मेरे को अभी हिलना नहीं है. तो बॉडी स्टिल हो गई. बॉडी की स्टिल होती है, अब क्या होगा? नाउ यू हैव टू फोकस योर अटेंशन टू द थर्ड आई. थर्ड आई चक्र अगर आप जानते हो कहाँ पे है? बिटवीन द आईब्रोज, इन मिडल ऑफ द फोरहेड, जस्ट बिटवीन द आईब्रोज. वहां पे आप फोकस करेंगे. यू कैन विजुअलाइज सम काइंड ऑफ अ लाइट देयर. तो आप गोल्डन लाइट, कोई भी लाइट जो आपको फोकस करना हो वो आप विजुअलाइज कर सकते हो उसमें, डिवाइन लाइट को, इन द थर्ड आई चक्र. पूरा ध्यान आप अपने थर्ड आई चक्र की तरफ ले जाएंगे एंड एक मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं. तो अगर गाइडेड मेडिटेशन है तो एक मंत्र चल रहा होगा. नहीं है गाइडेड मेडिटेशन, आप खुद मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी एक मंत्र को लेके आप रिपीटेडली उसका चैंटिंग कर सकते हैं. एंड इनिशियली यू कैन फोकस ऑन योर ब्रेथ. डू सम प्राणायाम सो दैट योर माइंड इज स्टेबल. थोड़ा सा ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट पे फोकस करिएगा. जब माइंड स्टेबल हो जाएगा देन यू चैंट दिस मंत्र. दैट इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग द मेडिटेशन. एंड स्लोली आप देखेंगे वो मंत्र जो है वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चला जाएगा एंड यू विल बी एबल टू ट्रांसेंड योर बॉडी एंड माइंड. दैट इज द प्रोसेस ऑफ द गेटिंग इनटू दैट मेडिटेटिव स्टेट. ये एफर्ट्स कर रहे हो आप मेडिटेटिव स्टेट में जाने के, बिकॉज यू एक्चुअली डोंट डू मेडिटेशन, यू गेट इनटू द मेडिटेटिव स्टेट, है ना. तो कुछ एफर्ट्स करने हैं, ये वाले एफर्ट्स करने हैं, ये स्टेप्स जो हैं ये फॉलो करने हैं. और इन एफर्ट्स के करने से आप एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएंगे. जितनी देर हो सके उस मेडिटेटिव स्टेट में रहिए टिल यू आर पुश्ड बैक. टिल यू आर पुश्ड बैक मीन्स टिल सम थॉट अराइजेस, सम अदर थॉट विल अराइज, एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू से ओके देन नाउ लेट मी कम बैक. तो आफ्टर 15 मिनट्स अलार्म बजिए, नाउ यू कैन रिलैक्स. तो वापस आ जाइए और एकदम से उठ के भागना नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स रह के just become aware of the surroundings and everything, and then you can get up. So that is the best way to do that, right? So that is the process of meditation. What are the efforts that you need to do to get into the meditative state? Making sense? कितने लोग कनेक्ट कर पाए? क्लियर है? कोई मुश्किल है इसमें? कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आई? बॉडी को स्टिल रखना है, बॉडी को स्टिल रखना है, माइंड को स्टिल रखना है. माइंड को एक रेपिटेटिव मंत्र या कोई भी एक चीज देनी है जो माइंड उसको जप करता रहेगा और धीरे धीरे वो बैकग्राउंड में चला जाएगा एंड देन यू विल बी इन ए कंप्लीट अवेयरनेस स्टेट. अगर वहां पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसी को कंटिन्यू करते रहिए, कभी ना कभी आप वहां पहुंचेंगे. दैट इज ओनली प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो. आइडिया इज दैट यू आर ट्रांसेंडिंग योर बॉडी एंड यू आर ट्रांसेंडिंग योर माइंड. जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी देन यू विल बी इन द रेल्म ऑफ टचिंग द सोल लेवल. That is the efforts that you have to make to get into the meditative state. इसकी प्रैक्टिस रोज करते रहिए. 15 मिनट हो गया, उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे और जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे ध्यान से आप समाधि स्टेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे. That is the complete knowledge of the process. Yes, any questions? Anybody wants to ask something? Yes, Amit ji. How do we differentiate that we have moved from the dhyan state to samadhi? I mean, how do we differentiate? When you come back, you will know it. When you come back from the meditative state, आपको बीच में पता लगेगा कि you are lost for some time.
हाँ वो होता है, आप सही कह रहे हो। जैसे होता है ना, कभी आप जाग रहे, अचानक झपकी लगती है, फिर आप उठ जाते हो, तो वो जो झपकी लगने वाला 2 सेकंड है ना, दैट यू कैन कंपेयर, आई एम नॉट सेइंग दैट इज समाधि स्टेट, यू कैन कंपेयर दैट विद द समाधि स्टेट। आप जाग रहे हो, सडनली झपकी लग जाती है, फिर आप उठ जाते हो, ये क्या हो गया? You get that point? So these समाधि kind of state- momentary things will take you to that. You can compare this with the samadhi state, but be in the meditative state. वो जब जाना होगा चले जाएंगे। एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या समाधि स्टेट का? नहीं। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो एनालिटिकल माइंड का काम ही नहीं है। माइंड को आप ट्रांसेंड कर चुके हैं, तो उसमें फिर कोई एक्सपीरियंस का एनालिसिस नहीं होगा। जब तक आप माइंड में हैं तब तक आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना। माइंड से बाहर हो जाएंगे तो माइंड एक्सपीरियंस नहीं करेगा, दैट इज समाधि स्टेट। एक्सपीरियंस कर लिया तो वो समाधि नहीं है, वो आपका कंसेप्ट है समाधि का, राइट? सो टाइम का पता ही नहीं लगता है, और यू कांट इवन हैव द मेमोरीज ऑफ द समाधि स्टेट। यू कांट मेमोरी आ गई तो माइंड आ गया, माइंड को ही तो बाहर निकालना है, माइंड को ही तो बाईपास कर रहे हैं। सही। सो ये तो बड़ा अजीब सा विचित्र सवाल है कि पता नहीं कभी समाधि स्टेट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचे, पूरी जिंदगी निकल गई। देखिए जब आप सोते हैं, कंपैरिजन दे देता हूँ आपको, एक्चुअल समाधि स्टेट का तो पता नहीं, बट कंपैरिजन ये दे सकते हैं। जब आप सोते हैं तो आपको लगता है ना, कहीं पहले तो नींद नहीं आ रही थी, फिर नींद आ गई, फिर सपने आ गए, उसके बाद घोड़े बेच के सोया। कैसे पता आप घोड़े बेच के सोए थे? बताओ मुझे, कैसे मालूम घोड़े बेच के सोए थे? पर मालूम है आपको मैं घोड़े बेच के सोया था कि नहीं? तो कोई सपना नहीं आया, कुछ नहीं आया, इट वाज अमेजिंग, इट वाज ब्लिसफुल। वो एक्सपीरियंस है, राइट? दैट इज यू कांट एक्सप्लेन। घोड़े बेच के सोया तो क्या हुआ? क्या हुआ बता देता तो घोड़े बेच के नहीं सोए आप, फिर आप जाग रहे थे। तो घोड़े बेच के सोया जो एक्सपीरियंस है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द समाधि स्टेट इन द वेकिंग, सोते हुए नहीं, वेकिंग में। ठीक है? So Amit ji, did I answer? You got an answer? I'm saying ultimately ये कि it's a very it's an experience जो कि याद नहीं रहता, और it's always a doubt that did we actually reach the samadhi state or not. But still after that there is a clarity. So I think that takeaway, जो भी धारणा, फिर उसके बाद ध्यान, जिस धारणा से घुसे थे उसके आंसर क्लैरिटी मिल जाती है, चाहे उसको डायरेक्ट डाउनलोड्स बोलो, एपिफेनीज बोल लो, उसमें आंसर मिल जाते हैं, एंड देन वी कम बैक। आई थिंक दिस इज हाउ आई रियलाइज दैट आई केम बैक फ्रॉम समाधि स्टेट, अदरवाइज कोई फिजिकल फर्क नहीं पता लगता है। हाँ, आपको रेवलेशंस मिलेंगे ना। आई एम अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन, इट्स अ फेल्ड अटेम्प्ट, आई नो दैट। Samadhi you will not experience. What you will experience is when you come back from samadhi to the dhyan state, you will get lot of revelations. वही रेवलेशंस आए वो ध्यान में आएंगे ना, डाउनलोड तो ध्यान में आएगा ना। आपके सुबह मेडिटेशन करके उठोगे तो मेडिटेशन में जो आपको डाउनलोड मिल रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर, दैट इज बिकॉज यू हैव टच some level of meditative state of the highest consciousness. समाधि स्टेट पे गए हो, वहां से कुछ डाउनलोड किया आपने। आप सिर्फ एक्सपीरियंस को अगर देखना है तो सिर्फ ये देखिए, आपको कैसे पता लगता है कि मैं घोड़े बेच के सोया, बस मेरे को उसका जवाब दे दीजिए अपने आप, मेरे को नहीं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं जवाब नहीं दे सकता लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया था, देन यू विल नो दिस इज द सेम एक्सपीरियंस दैट यू विल हैव इन समाधि स्टेट व्हेन यू आर वेकिंग। सोते हुए में जो डीप स्लीप का अनुभव है आपका, वही वेकिंग अवर्स में समाधि का अनुभव है। दैट्स ऑल आई कैन गिव द कंपैरिजन। ठीक है? राइट, ग्रेट, वंडरफुल अमित जी, दैट वाज गुड क्वेश्चन। यस, हु एल्स वांट्स टू आस्क? किसी और को कुछ पूछना है? We are just about to touch the session. So see, today I just gave you the, you can say the theoretical knowledge, steps बता दिया आपको। सब लोगों को ये practice करना है, right? And you will actually come to know the road blocks. ठीक है? और road blocks को जब आपको पता लगेगा तब आपको अगले हफ्ते आके शेयर भी करना है। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि फाउंडेशन जो है इन सब का, मेडिटेशन के लिए अगर आपको ध्यान के स्टेट में जाना है तो जो फाउंडेशन है वो हमारा शुरू होता है यम और नियम से। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? यम और नियम से, यस। अब ये भी थ्योरी है कहने को, लेकिन हम ये थ्योरी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इफ यू वांट टू गेट दिस इनटू प्रैक्टिस, यू हैव टू सी योर लाइफ। आपको थोड़ा स्वाध्याय करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस देखना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि ये वाले एस्पेक्ट 10 पॉइंट्स जो हैं, 5 यम के 5 नियम के, आपकी लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली
प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, सबसे पहले तो ये देखना है, और कैसे उसको अपनी लाइफ में लाना है. And trust me, unless this foundation comes, you will be walking on, like I said before, आप विकलांग योग सीखेंगे, आप अष्टांग योग नहीं सीखेंगे. तो यम और नियम बहुत जरूरी है, ठीक है. और उसके लिए I would request Sanjeev, can I make a unreasonable request to you? Yes, please. What I was thinking is, your Friday session, if we can devote this Friday possibly, or maybe the next Friday also, on the concepts of yam and niyam for the practical aspects, how they can come into the life, right? Because मैं यहाँ पे जो है basically practical aspects पे कम बात कर रहा हूँ, ज़्यादा theoretical बात हो रही है या practice की बात हो रही है. अगर ये एक हफ्ता लोग practice करते हैं और अगर कुछ problem आ रही है इनको, तो यम और नियम का जो foundation है, can we do a practical recap of that in your session Friday को? That's a great idea, because what you said, यम से ही शुरुआत होती है. जो यम में बहुत सारे blockages होते हैं हमारे individual के life के ऊपर, and if you are proposing, I accept your offer. Great, wonderful. Friday we will do it on start with basics. We'll not talk theory out there, practical aspects. Theory मैं यहाँ पे already बता चुका हूँ, सब लोगों को मालूम है. Only practical aspects. Practical aspects की हम बात करते हैं, तो Friday को that's perfect, great. Thank you very much. All of you are going to practice this 15 minutes every day and attend the Friday session. हमारे Friday Wednesday group में वो Friday session के link आ जाते हैं, तो Sanjeev puts that, so you can follow that and be there on the Friday session. And some of us are already attending it, right? तो मैं हर बार attend करता हूँ, क्योंकि हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, because he deals more with the mind level and the practical level of life. मैं थोड़ा ज्ञान योग में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तो मैं थोड़ा ज्ञान ज़्यादा देता हूँ, right? वो उसको जरा प्रैक्टिस में ज़्यादा अच्छा डालने की बात करते हैं. So we have some amazing experiences in that Friday session. So I would request all of you to be there, and we will have some creative efforts there to transform our life, right? Everybody okay with that? Just give me a thumbs up. Link आपको मिल जाएगा Wednesday group में, so we can be part of that Friday session. इस हफ्ते करते हैं, अगर comfortable रहा तो हम उसको अगले session में भी उसको extend कर सकते हैं, right? Great. So with that support from Sanjeev, we can definitely play the game full on. But सब लोगों को पहले 15 minute meditation की practice करनी है, and then you have to come and tell what is not working in the Friday session. Okay. Right. And then we will build on that and with the foundation of yam and niyam, whatever. Okay, great. So that's wonderful. Anything? 9:02 हो गए हैं, तो already time exceeded. I will not take much time. Anybody wants to share something? You are free to do that. Anybody wants to share anything towards the last? Kiran ji, आपने आज कुछ नहीं कहा. How are you? Everything fine with you? You want to share your experience of meditation? सर, आपने समाधि का बोला है ना? मुझे पता नहीं बोला है. आपने ध्यान का तो बोला ही था, लेकिन जब मैंने ध्यान का पहले शुरू किया था, तो थर्ड आई पे एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो गए. मैंने पता नहीं मैं 10-20 मिनट पूरे गायब थी. फिर अचानक होश में आई तो पता चला कि मैं गायब थी. तो अब पता चला कि मैं समाधि में जाके वापस आ गई थी. Very good, great. So is that one-off experience or you do that regularly? मुझे इनकी बहुत बार होता है. बहुत बार होता है. बहुत बढ़िया है जी किरण जी. तो यही आपने कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है? इससे आपका माइंड बहुत शांत हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जैसे डीप स्लीप में जब हम जाते हैं, जब आप घोड़े बेच के सो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, तो वो नींद में समाधि स्टेट होता है. जागने में जब समाधि स्टेट होता है, उसको मेडिटेशन बोलते हैं. मेडिटेशन से आप समाधि में जा सकते हैं, राइट? ग्रेट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है किरण जी. गुड जॉब. So keep doing that good thing. You will get a lot of downloads. आपका माइंड शांत हो जाएगा, बहुत कंसंट्रेटेड हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा, और जो कुछ आप लाइफ में चाहते हैं पूरे धारणा के साथ उसको आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे. तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत बढ़ जाएंगी इससे, राइट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. Anything else you want to share? Okay, that's fine. All right, so with this we come to the end of the session. Thank you very much for your participation, and I hope this session was valuable for all of you. And let's meet again next Wednesday, and before that we will meet on Friday, right? So thank you very much. Enjoy a great day, enjoy a great life, and let's create some magic and miracles in our life. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.